Hello students, my name is Gargi and today in this video lecture we are going to revise our chapter The Sound of Music and our poem Wit. Okay, so this is a one shot video, so we are going to see the summary and do a few question answers. Okay, so let's start with The Sound of Music and it's divided into two parts. Sound of Music, the chapter is divided into two parts. One is Evelyn Glennie, is about Evelyn Glennie, and the other one is about Ustad Bismillah Khan and the Shehnai. Okay, so let's start with part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Now, as we can see, as we can understand from the topic that Evelyn Glennie cannot hear. Okay, she is unable to hear, and still she is a great percussionist. She has these mastery over around thousands of instruments. So let's start. This part is about a Scottish girl named Evelyn. She was very fond of music from the very beginning. Okay, when she was a child, she was very fond of music and wanted to make it her life slowly. So she started learning music, but unfortunately, she loses her hearing ability. Okay, so then what happens? It was first noticed when she was 8 years old. जब वो 8 साल की थी, तब इसे पहली बार notice किया गया. And by 11 years, she was completely deaf. 8 years की age में उनकी जो deafness थी वो acknowledge की गई. But when she was 11 years old, she was completely deaf. मतलब वो कुछ भी नहीं सुन पाती थी. Due to nerve damage. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. Now she was so determined to learn music and learn how to play a few instruments. So she did not, उन्होंने हार नहीं मानी and she kept learning. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक बार उन्होंने देखा कि एक लड़की xylophone is a kind of an instrument जिसे beat करके play किया जाता है and she wanted to learn it too. वो चाहती थी कि वो भी उसे बजाना सीखें. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes encouraged her. बहुत से teachers थे, most of the teachers, उन्होंने ये बोला कि you can't even hear, so how will you learn how to play a musical instrument? कैसे सीखोगे? जब तक सुन नहीं सकोगे तब तक music को कैसे सीखोगे? Musical instrument को कैसे सीखोगे बजाना? But percussionist Ron Forbes, उन्होंने वो एक्नॉलेज किया, उन्होंने उनको इनकरेज किया, उनका जो टैलेंट था उसको एक्नॉलेज किया एंड ही स्टार्टेड टीचिंग हर. सो ही बिगैन बाय टर्निंग 2 लार्ज ड्रम्स. उन्होंने कैसे उन्हें सिखाना शुरू किया? उन्होंने 2 लार्ज ड्रम्स लिए ऑफ डिफरेंट नोट्स एंड ही टोल्ड हर टू फील दोज ड्रम्स, टू फील द वाइब्रेशंस. ठीक है, एंड ही टोल्ड हर to feel the notes of the drum in her body. The rest was sheer determination and hard work. उन्होंने सिर्फ उनको encourage किया, बाकी सारी चीजें उनका खुद का determination, उनका खुद का hard work थी, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा popular, इतनी ज़्यादा talent, इतनी ज़्यादा successful हुई. She traveled the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उन्होंने 16 ईयर की एज में ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाना है और वो आगे जो भी करेंगी वो म्यूजिक की ही फील्ड में होगा. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. बहुत prestigious academy है Royal Academy of Music and उन्होंने one of the highest marks score किए थे उस पूरे इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में, कि जो लोग सुन सकते थे वो भी इतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए जितने एवेलिन ग्लेनी ने कर लिए थे. She gradually left the orchestral work and started giving solo performances. At the end of her 3-year course, she had received most of the top awards. वो जितने टाइम में उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, उस टाइम पीरियड में ही उन्होंने जितने टॉप अवार्ड्स थे म्यूजिक की फील्ड में वो सारे जीत लिए थे. शी हैड ऑल ऑफ दोज अवार्ड्स. शी एक्सप्लेन्स दैट म्यूजिक फ्लोज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी. शी सेज दैट वो बॉडी के हर एक पार्ट में म्यूजिक को फील कर पाती हैं, चाहे वो उनकी स्किन हो, चाहे वो उनके हेयर हो, कहीं भी कैसे भी वो हर तरह से हर बॉडी के पार्ट में म्यूजिक को फील कर पाती है, उसके वाइब्रेशंस को फील कर पाती हैं. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. वो ही बोलती हैं कि जब वो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करती हैं जो कि स्टिक से प्ले होता है,
तो वो स्टिक के थ्रू वो उसकी वाइब्रेशंस को अपनी फिंगर टिप्स पे फील कर पाती हैं. She can feel the resonances flowing into her body on a wooden platform. She removes her shoes so that vibrations pass through her bare feet and up her leg. वो क्या करती हैं जब भी किसी वुडन फ्लोर पे अगर वो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रही हैं तो व्हाट शी डज इज शी रिमूव्स हर शूज. तो वो वुडन प्लेटफॉर्म पे जो वाइब्रेशंस आती हैं वो उन्हें उनके पैरों पे फील होती है. सो दिस इज हाउ शी feels the vibrations, she feels the music, और इसी वजह से उनको इतना अच्छे से हर एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना आता है. Evelyn is a perfect example of disability cannot stop a person to achieve if she is determined and works hard towards it. Evelyn earned many awards and rewards. She has given enormous pleasure to millions. और वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड हैं या जो किसी भी तरह से किसी पर्टिकुलर काम को कर नहीं सकते या फिजिकली वो किसी काम को नहीं कर पाते. तो वो एवलिन उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा एक वो लोग उनको देख के सीखते हैं कि कैसे इफ शी कैन डू इट देन ऑफ कोर्स वी कैन आल्सो डू इट. मतलब अगर ये कर सकती हैं तो हम डेफिनेटली कर ही सकते हैं. ओके, एंड शी हैज गिवन enormous pleasure to millions, और उन्होंने बहुत से लोगों को अपने म्यूजिक के थ्रू प्लेजर दिया है. ओके, सो दिस वाज आवर पार्ट 1 एंड नाउ आवर पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. नाउ बिस्मिल्लाह खान इज नोन फॉर शहनाई. शहनाई एज हम लोग जानते हैं कि शादियों से हम लोग शहनाई को पहचानते हैं. तो वहां तक कैसे पहुंची, मतलब शहनाई की जर्नी क्या थी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जर्नी क्या थी, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे. ओके, सो द चैप्टर स्टार्ट्स विद हाउ एम्परर औरंगजेब हैड बैंड अ पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी बिकॉज इट हैड दिस वेरी श्रिल साउंड. बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट सा साउंड था उसका. तो औरंगजेब ने क्या किया, उसको बिल्कुल बैन ही कर दिया कि पुंगी तो इस मेरे राज्य में तो बजेगी ही नहीं. ठीक है, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ही बैन कर दिया बिकॉज ऑफ दैट अनप्लेजेंट साउंड. Now a barber of a family of professional musicians, एक बार्बर था, उसने क्या किया, he decided to like modify that pungi and turn it into a different musical instrument. Okay, so what he did was he played a barber of family of professional musicians decided to improve the tonal quality of the pungi. He played the improved instrument before royalty and everyone was impressed. उन्होंने जो changes किए उसमें पुंगी में जो चेंजेस किए, एवरीवन वाज सो इम्प्रेस्ड विद दोस चेंजेस एंड द साउंड के रॉयल्टीज के आगे जब उन्होंने बजाया तो एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. द इंस्ट्रूमेंट हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. अब पुंगी जितना श्रिल साउंड तो था नहीं उसका, इट वाज वेरी गुड, तो उसे नया नाम देना था क्योंकि वो वैसा तो था नहीं. ठीक है, तो उस नए नाम को कैसे दिया गया कि फर्स्ट टाइम शाह के चेम्बर्स में प्ले किया गया था उसे, राइट. एंड एक नाई ने, एक बार्बर ने, बार्बर को हिंदी में नाई कहते हैं, नाई ने बनाया था उसे, तो शहनाई ऐसे उसे उसका नेम दिया गया कि शाह के चेम्बर्स में फर्स्ट टाइम प्ले किया और एक नाई ने प्ले किया, एक नाई ने उसको बनाया है, तो शहनाई उसका नाम पड़ गया. ठीक है, सो द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड शहनाई. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, और जो उसका साउंड था उसको क्या कंसिडर किया जाने लगा, ऑस्पिशियस कंसिडर करने लगा, किया जाने लगा. देन एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और आज भी शादियों में या टेम्पल्स में शहनाई प्ले की जाती है और उसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. इन द पास्ट शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ग्रुप ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट. रॉयल कोर्ट में 9 इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे 9 रत्न थे अकबर के जैसे, वैसे ही 9 इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनमें से एक थी शहनाई. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और इस सारी चीज़ों का क्रेडिट, इन सब का क्रेडिट, शहनाई को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने का क्रेडिट किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. उनकी जो अपब्रिंगिंग थी ना, उसी में म्यूजिक था, क्योंकि उनके पूरी फैमिली का उनका बैकग्राउंड ही म्यूजिक था. पूरी फैमिली में इतने सारे म्यूजिशियंस थे, तो उन्होंने बचपन से यही देखा था कि म्यूजिक सुना था, म्यूजिक सीखा था बचपन से ही.
His grandfather, father and other paternal ancestors were also great Shehnai players. Bismillah was fascinated at watching his uncles practice the Shehnai. अब जब उनके अंकल जो शहनाई प्रैक्टिस करते थे वो देख के वो इतने फैसिनेट हो जाते थे कि वो मेस्मराइज होकर उन्हें घंटों तक देखते रहते थे कि वो कितना डेडिकेशन है उनके अंदर, कि वो शहनाई जब प्ले करते थे वो कितने डेडिकेशन के साथ करते थे. He started accompanying his uncle Ali Bucks and slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. पूरे दिन तक वो जब उन्होंने शहनाई सीखनी शुरू की थी तो पूरे दिन तक बैठ के वो शहनाई प्ले करते रहते थे. The flowing waters of Ganga inspired him. जो उनके जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था वो क्या था? That flowing water of Ganga. ये गंगा के किनारे वो टेम्पल में बैठ के जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई बजाना सीखते थे तो वो वहाँ पे बैठते थे तो उन्हें जो गंगा का जो पानी था, जो बहता हुआ जो फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा था, वो उन्हें बड़ा इंस्पायर करता था. एंड ही ऑल्सो क्रिएटेड राग्स देयर, क्रिएटेड राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड बी बियॉन्ड दैट रेंज ऑफ शहनाई, जो शहनाई की रेंज से ही बाहर माने जाते थे, वो सारे उन्होंने वहाँ पे राग्स क्रिएट किए गंगा के पास बैठ के. इसीलिए बोला जाता है कि गंगा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. इतना अभी जितना एक्सपोजर है हर चीज को लेके पहले उतना नहीं था. पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था, टेलीविजन रेडियो बहुत ज़्यादा नहीं थे. सो व्हेन ऑल इंडिया रेडियो स्टार्टेड इन लखनऊ तब उन्हें उनका बिग ब्रेक मिला, तब उन्हें वो एक्सपोजर मिला जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. और तब he got that big break of his and he soon became an often heard Shehnai player on radio. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. उन्होंने 1947 में जब हमें फ्रीडम मिली थी तब उन्होंने पूरे इंडिया को ग्रीट किया था अपनी शहनाई से. And film director Vijay Bhatt was also impressed after hearing him play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. Then Bismillah became the first Indian to be invited to perform at a prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. उन्हें काफ़ी सारी prestigious जगहों से, prestigious festivals से invitations आए to play his shehnai there. And national awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan, the Padma Vibhushan, इतने बड़े बड़े awards उनको मिले हैं. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, Bharat Ratna. और उसके बाद 2001 में 2001 में उन्हें भारत रत्न मिला, India's highest civilian award. Despite traveling many countries, उन्होंने पूरी सारी कंट्रीज घूमी, दुनिया घूमी उन्होंने, लेकिन at the end what he says is I miss my country, I miss हिंदुस्तान, I love हिंदुस्तान. एंड मैंने दुनिया की हर एक कंट्री ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल सिटी देखी है, लेकिन उन्हें याद किसकी आती है? उन्हें याद हिंदुस्तान की आती है. He was exceedingly fond of बनारस एंड दमराव, क्योंकि उनका बचपन वहाँ बीता है और उन्होंने जो शहनाई बजाना सीखा था वो वहीं सीखा था. ठीक है, तो सारी चीज़ें उनके लिए, उनका घर तो दमराव में और बनारस में था, तो इसलिए उन्हें पूरे वर्ल्ड में कोई सिटी अच्छी नहीं लगती, उन्हें बस बनारस और दमराव पसंद है. एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. ही इवन रिफ्यूज्ड टू अ पोजीशन इन अमेरिका सेइंग दैट ही कैन नॉट फाइंड द गंगा देयर. एक किसी स्टूडेंट ने उन्हें बोला कि मैं यूएसए में एक स्कूल खोलना चाहता हूँ एंड ही वांट्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खान टू हेड दैट स्कूल, बट ही रिफ्यूज्ड, क्योंकि उन्हें वहाँ वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा. इवन इफ ही कैन क्रिएट ऑल दैट एनवायरनमेंट, वो टेम्पल्स बना देगा, सारी चीज़ें वो रिक्रिएट कर देगा, बट कैन ही ब्रिंग गंगा देयर? नो, ही कैन नॉट. सो ही रिफ्यूज्ड टू हेड दैट पर्टिकुलर स्कूल. Then whenever he was traveling abroad, his heart kept aching for his homeland. Okay, so this was our chapter. These were our part 1 and part 2. Let's do a few question answers. First one is extract based. आपको एक छोटा सा extract मिलेगा और उसकी basis पे आपको questions के answer देना है. And the extract is Rush Hour Krauss Josel. ये हमारे एवलिन ग्लेनी का first part है, मतलब first part का
फर्स्ट पैराग्राफ है, रश आवर क्राउड जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Okay? So this is our extract और इसी में से questions आएंगे. इसी के basis पे हमें questions के answer देने हैं. Okay? So why was there a jostling on the platform? Why was there a jostling on? हसल बसल क्यों हो रहा था वहाँ पे? There was jostling on the platform because it was rush hour and many people wanted to get on the train. ठीक है, हर किसी को कहीं ना कहीं जाना होता है. एक रश आवर होता है जहाँ पे सबको कहीं ना कहीं जाना होता है, स्पेशली मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है जब सबको कहीं ना कहीं अपना ऑफिस जाना होता है, जॉब पे जाना होता है. तो दैट्स वाई देयर वाज दिस जॉस्लिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. Why was the girl nervous? Why was she nervous? Because it was her first day at the prestigious academy, the Royal Academy of Music. That's why she was a bit nervous. In what context profoundly has been used? Profoundly का मतलब क्या है यहाँ पे? Completely. She was profoundly deaf. तो profoundly का मतलब क्या हो गया? She was completely deaf. Then what was exciting fact about the young girl? उसके बारे में एक एक्साइटिंग फैक्ट क्या था? एक यंग गर्ल है, उसका फर्स्ट डे है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में. ठीक है, और भी लोगों का होता है, बट उसके बारे में डिफरेंट क्या था? उसके बारे में एक्साइटिंग फैक्ट क्या था? दैट शी वाज डेफ, दैट शी कुडंट हियर. वो और लोगों की तरह सुन नहीं सकती थी और उसका म्यूजिक एकेडमी में फर्स्ट डे था. ठीक है, तो दिस वाज द एक्साइटिंग फैक्ट अबाउट दैट गर्ल. ओके, ये तो एक्सट्रैक्ट बेस से. अब होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ठीक है, जिनका 30 to 40 वर्ड्स, 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना है. एंड लेट्स look at a few question answers. How was Evelyn able to express music so beautifully? कैसे एक्सप्रेस कर पाती थी वो म्यूजिक को इतना ब्यूटिफुली? That she was able to express music beautifully because she was able to feel it far more deeply than anybody who can hear it. वो सुन नहीं सकती थी, तो वो क्या करती थी? वो फील ज़्यादा करती थी उस म्यूजिक को. Okay, and music is all about feelings, right? So वो feel normal किसी भी normal person से काफी ज़्यादा कर पाती थी. That's why she was better than anyone else. But Evelyn can sense music through her body. और वो पूरी body पे अपने music को sense कर पाती थी. She was able to feel the vibrations in her body. Okay. Next question is, why did Evelyn use to remove her shoes? Wooden platform पे वो shoes क्यों remove कर लेती थी? Because she wanted to feel the vibrations on her feet, on her through, and she used to feel those vibrations through her leg ताकि वो उस म्यूजिक को समझ पाए, उस म्यूजिक को सीख पाए, सुन पाए. ठीक है, सुन तो सकती नहीं थी, तो उसको फील करती थी अपने लेग्स के थ्रू. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह से आफ्टर गेटिंग द भारत रत्न अवार्ड? उन्होंने भारत रत्न जीतने के बाद एक पर्टिकुलर कुछ लाइन्स बोली थी, एंड दोज लाइन्स वर, आफ्टर गेटिंग द भारत रत्न बिस्मिल्लाह सेड दैट इंडियंस शुड वैल्यू देयर म्यूजिक, लाइक इंडियंस शुड टीच देयर चिल्ड्रन म्यूजिक. क्योंकि अब तो वेस्टर्नर्स भी हमारा म्यूजिक सीखने के लिए आ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं म्यूजिक सीख रहे? जब बाहर से लोग हमारा म्यूजिक सीखने आ रहे हैं, तो हम ही क्यों अपने बच्चों को म्यूजिक नहीं सिखा रहे हैं? ठीक है, इट्स आवर रिचेस्ट ट्रेडिशन, रिचेस्ट कल्चर, बहुत रिच है हमारा कल्चर. ठीक है, तो हम लोगों को हमारे बच्चों को म्यूजिक सिखाना चाहिए. Then next question is, where was Bismillah's first journey abroad? What impact did it leave there? तो उनका first जो abroad journey था, that was to Afghanistan, and he impressed the king of Afghanistan, so he gave him many priceless Persian carpets and a lot of souvenirs there, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा impress हो गए थे उनसे. Okay? उसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको 100 to 120 वर्ड्स में अपना आंसर फिनिश करना है. देन नेमिंग ऑफ द शहनाई हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट. व्हाट वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद दिस नेमिंग? ओके, सो एज वी नो, हमने पढ़ा अभी समरी में भी, आई टोल्ड यू द शहनाई, द इंस्ट्रूमेंट पुंगी was banned, and after that Anai decided to improve the tonal quality of the pungi, so he made shehnai, and then it was played first time in the chambers of a shah, and it was created by a nai, so it was named a shehnai. Okay,
and what values are associated with, it's considered very auspicious. उनका जो sound है वो auspicious माना जाता है, and it's played in temples, played during weddings in North India. Like North Indian weddings are incomplete without the sound of shehnai. Okay, so इसी आंसर को आपको elaborate करके लिखना है, 100 to 120 words में finish करना है. Okay, next question is, how did Ron Forbes help Evelyn sense the music without hearing it? Ron Forbes ने कैसे help किया था? So I told you he took 2 drums of different notes, higher, lower, and then he told her to feed the lower drum on the lower part of her body and the upper drum, the bigger drum, on the upper part of her body, and he told her to feel the vibrations. Okay, हर body के हर part में उन्होंने उन vibrations को feel करने के लिए बोला था. ठीक है, and that's how he taught her how to play a particular instrument. Okay, all right, so this was our chapter 1, the sound of music. Both the parts we covered. Then our next poem, our next thing that we are going to cover is Wind, the poem Wind. Okay, so this poem Wind, here wind symbolizes the challenges of our lives, how every single person has to face challenges throughout their life. ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है इस पूरी दुनिया में जिसकी लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं आती और जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते हो, वो भी डेली बेसिस पे सबकी लाइफ में आते हैं, राइट. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू लर्न हाउ टू फेस दोस चैलेंजेस. ठीक है, हमें उनसे डर के भागना नहीं है, हमें उन चैलेंजेस को फेस करना है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस पोएम इज गोइंग टू टीच अस, दैट हाउ टू फेस दोस चैलेंजेस इन आवर लाइफ. ठीक है, तो एक लिटरेरी डिवाइस तो मैंने अभी बता दिया, एक पोएटिक डिवाइस, तो ये सिंबोलिज्म तो है ही है इसमें, क्योंकि विंड इज सिंबलाइजिंग द डिफिकल्टीज इन आवर लाइफ और द चैलेंजेस दैट वी फेस इन आवर लाइफ. ठीक है, तो याद रखना कि एक लिटरेरी डिवाइस तो ये है ही है. ठीक है, चलो समरी स्टार्ट करें. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द विंड. द पोएट आस्क्स द विंड टू कम सॉफ्टली. अब पोएट क्या बोल रहा है विंड को कि कम सॉफ्टली, बी जेंटल. ठीक है, एकदम से मत आओ. He requests the wind not to break the shutters of the windows, not to scatter the paper, throw the books down from the shelf. कि भाई अगर wind बहुत speed में आएगी या बहुत powerfully आएगी तो क्या होगा, चीज़ें टूट जाएंगी, है ना. जो पेपर है, जो लाइट चीज़ें हैं वो गिर जाएंगी, चीज़ें टूट जाएंगी. अगर विंड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो चाहे कितनी ही अच्छी चीज़ हो वो टूट जाएगी, ना, पेड़ टूट जाते हैं. तो द पोएट इज रिक्वेस्टिंग द विंड टू कम सॉफ्टली, बट द विंड थ्रोज द बुक्स एंड टीयर्स द पेजेस. लेकिन अब विंड जो है वो नहीं सुन रही है, तो व्हाट हैपन्स, वो जो बुक्स हैं या जो पेजेस हैं वो क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, बुक्स फट जाती हैं. देन पोएट सेज दैट द विंड मेक्स अ मॉकरी ऑफ वीकलिंग्स. अब विंड क्या करती है, जो वीक लोग हैं ना, जो वीक हैं उनका मजाक उड़ाती है. ठीक है, तो हमें क्या होना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि हमें चैलेंजेस को फेस करना है. अगर चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे, अगर हम कमजोर हो जाएंगे और डर के रहेंगे, देन दोस चैलेंजेस विल कीप कमिंग बैक. ठीक है, तो हमें क्या करना है, फेस करते जाना है. जितना फेस करेंगे उतने चैलेंजेस कम हो जाएंगे. इट ब्रिंग्स डाउन फ्रेल हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, राफ्टर्स एंड इवन वीक हार्ट्स. इट क्रशेस एवरीथिंग दैट इज वीक. जो भी वीक है, चाहे वो हार्ट्स हो, चाहे वो हाउसेस हो, चाहे वो राफ्टर्स हो, कुछ भी हो, जो भी वीक होता है वो उसको तोड़ देती है. The poet advises us to be strong. Only then we can save ourselves from the wind. अब इस सारी चीज़ों से बचने का क्या सॉल्यूशन क्या है कि सारी चीज़ें हमारे साथ ना हो, we be strong. ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग रहना है. और we should build strong homes. अब we have to befriend the wind. Okay, wind से हमें दोस्ती करनी है. So how can we do that? हम क्या कर सकते हैं, विंड को रोक तो सकते नहीं है क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुनेगी. ऑब्वियसली विंड गॉड कैसे हमारी बात सुनेंगे, है ना. जो गॉड है वो हमारी कैसे बात सुनेंगे, गॉड किसी की सुनते थोड़ी ना है. तो हम उसे रोक तो सकते नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू इज बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. हम हमारे घरों को स्ट्रॉन्ग बनाए, हम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए. ठीक है, वी हैव टू मेक आवर हार्ट स्ट्रॉन्ग. बॉडीज एंड हार्ट शुड ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग, और हार्ट और बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए.
It is the way of the world to kick the weak and to be friends with the strong. World, this is what happens, है ना? ये तो होता ही है that weak people are always there, they get destroyed. और strong लोग हमेशा क्या होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. तो हमें भी strong बनना पड़ेगा, ठीक है? Then the wind blows out the weak fires and make them strong fires and roar and flourish. अब हम अगर weak भी हैं and there are challenges in our life, तो हम उन challenges को face करेंगे तो वो हमें strong ही तो बनाएंगे. हम ऐसा नहीं सोचे कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरी लाइफ में challenges आ रहे हैं, तो हमें हार नहीं माननी. जितना हम उन challenges को face करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम strong हो जाएंगे, ठीक है? So blows out weak fires but makes strong fires roar. और जो वीक फायर्स हैं वो उनको क्या करती है, वो तो बुझा देगी उनको. विंड आएगी, अगर फायर वीक है तो उसको क्या कर देगी, बुझा देगी. बट अगर फायर स्ट्रांग होगी तो वो उसे बुझा नहीं पाएगी. सो व्हाट वी हैव टू बिकम इज स्ट्रांग फायर बनना है हमको. Thus the poem conveys the idea that nobody cares for the weak, even the wind is on the side of the strong people. We must make ourselves strong to become successful and overcome challenges in our life. ठीक है, तो ये तो अपना पोम का समरी था. देन कम्स पोएटिक डिवाइसेस. पोएटिक डिवाइसेस में एक तो मैंने बताया था, क्या बताया था, सिंबॉलिज्म बताया था, ठीक है. फर्स्ट इज एनाफोरा. व्हाट इज एनाफोरा? इट इज रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड इन कॉन्जिक्यूटिव लाइंस. कॉन्जिक्यूटिव लाइंस क्या होते हैं, लगातार आती जो लाइंस होती हैं, ठीक है. तो कंटिन्यूसली अगर लाइंस आ रही हैं तो उसमें अगर सेम वर्ड से वो लाइंस स्टार्ट हो रही हैं तो वो एनाफोरा है, ठीक है. जैसे यू कैन ओपन योर बुक्स इफ यू वांट, इट विल हेल्प यू. अगर बुक ओपन कर लोगे अभी तो ये समझने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा. एनाफोरा क्या होगा, देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन किससे बिगिन हो रही है, डोंट से. डोंट डोंट डोंट, तीनों लाइंस डोंट से स्टार्ट हो रही हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एनाफोरा आ जाएगा, ठीक है. देन कम्स पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफाई किया गया है. व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? जब भी हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या फिर एनिमल को ऐसे प्रोनाउंस से बुलाते हैं, जैसे कोई प्रोनाउन दे दिया जो हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, या फिर वी आर ट्रीटिंग दोज नॉन लिविंग थिंग्स या फिर उन एनिमल्स को हम एज ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहे हैं, तो उसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाई कर रहे हैं उसे, ठीक है, एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, उसमें यू बोला है, विंड को यू यूज किया है, ठीक है. नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यू यूज नहीं करते हैं. देन कम्स रिपीटेशन. नाउ व्हाट इज रिपीटेशन? कोई भी वर्ड है अगर वो बार बार आ रहा है तो वो रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है. वर्ड कंप्लीट, द होल वर्ड इज बीइंग रिपीटेड, वो रिपीटेशन है, ठीक है. डोंट गेट कंफ्यूज. एनाफोरा क्या है, कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में वर्ड रिपीट हो रहा है, और रिपीटेशन क्या है कि एक लाइन में वर्ड रिपीट हो रहे हैं, आसपास वाली लाइंस में वर्ड्स ही रिपीट हो रहे हैं, उनको रिपीटेशन बोलते हैं, ठीक है. तो एनाफोरा और रिपीटेशन में डिफरेंस है. देन कम्स एलिट्रेशन. अभी एलिट्रेशन क्या है, इसमें भी रिपीटेशन होगा, बट इसमें जो इनिशियल साउंड है, वर्ड नहीं, साउंड, इनिशियल लेटर नहीं, साउंड रिपीट होगा, ठीक है. जैसे विंड गॉड विनोज, विंड विनोज, विंड विनोज, वो साउंड आ रहा है, डब्ल्यू ए जो है वो साउंड रिपीट हो रहा है ना, ठीक है. तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज असोनेंस. अबे असोनेंस क्या होता है, दो होते हैं, ठीक है, असोनेंस और कॉन्सोनेंस. असोनेंस में क्या होता है, वावल साउंड रिपीट होता है. कॉन्सोनेंट्स और वावल्स तो पता है हमें, है ना, ए आई यू हमारे वावल्स होते हैं. असोनेंस में वावल साउंड्स रिपीट होता है, एंड इट्स नॉट कंपल्सरी कि जो साउंड है वो इनिशियल हो, ठीक है, वो मिडिल में भी हो सकता है, वो एंड में भी हो सकता है, राइट. सो असोनेंस में क्या होता है, वावल साउंड्स रिपीट होते हैं. देन कम सिंबोलिज्म, बता दिया है मैंने ऑलरेडी. कॉन्सोनेंस अभी बोला था, असोनेंस कॉन्सोनेंस दो होते हैं. जैसे आर साउंड रिपीट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फायर रोर्स एंड फ्लरिशेस. स्ट्रॉन्ग, रोर, फायर, है ना, फ्लरिश, ठीक है. क्या हो रहा है, दो अलग अलग साउंड है पर दोनों अलग अलग जगह पे रिपीट हो रहा है, ठीक है. और राइम स्कीम की अगर हम बात करें, देयर इज नो राइम स्कीम, इट्स अ ब्लैंक वर्स, दैट मीन्स फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स कुछ भी बोल सकते हैं, एंड इट डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर राइम स्कीम, ऐसे ही फ्री वर्स में लिखा हुआ है, ठीक है. क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं थोड़े से, इसके एक्सट्रैक्ट बेस कर लेते हैं. पहले तो 3 लाइंस है, देखो ये वही वाली लाइंस आ गई है ना, फुरा वाली, है ना. Wind come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the paper. ठीक है. First question is, what does the poet ask the wind? क्या बोल रहा है, to come softly, ना,
What did the wind tear? क्या फाड़ दिया है विंड ने? पेपर्स, बुक्स जो है पेपर को स्कैटर कर दिया और बुक्स को क्या कर दिया? फाड़ दिया है. What is the phrase in the extract means to blow gently and mildly? Blow gently and mildly. तो come softly. Wind come softly. तो क्या बोलने की कोशिश करें कि blow softly, धीरे आराम से चलो. Which poetic device has been used in these lines? कौन सा poetic device use हुआ है? Personification बोल सकते हैं हम. एक तो personification हुआ है कि come softly, है ना, and don't break the shutters of the windows, ये पूरा personification use हुआ है. anaphora भी बोल सकते हैं हम इसमें, anaphora भी use हुआ है. तो दो possible answers हैं, ठीक है. Then comes short answer type questions. Okay, why does the poet ask the wind to come softly in the beginning? Why is the poet asking the wind to come softly? Because if it doesn't come softly, then it's going to break the shutters of the window, it's going to scatter the paper, it's going to tear the books apart, and it's going to throw the books down from the shelf. तो ये सारा, ये इतना destruction नहीं हो. So for that reason the poet is asking the wind to come softly. Give the central idea of the poem. Now what is the central idea of the poem? The poem is that we should be strong in our mind and body. We have to be strong and we have to learn how to face the challenges in our life. ठीक है, इतनी सारी जो बातें बताई वो सब central idea ही है, एक तरह से ही मान लो, ठीक है. Then long answers में how is wind a symbolic poem? Compare it with the road not taken. अब wind एक symbolic poem है and the road not taken पढ़ा होगा, फर्स्ट पोम है हमारी, ठीक है. चलो, poem can be read just for the pleasure of their rhyme or for their literary meaning. However, poems can have a deeper meaning than the obvious one they show. अब symbolic कैसे? ये हमने poem को अगर normally पढ़ा है इसको, तो हम normally भी ले सकते हैं, जैसे कि wind है, हवा चलती है, वो पोट नॉर्मल सारी बात कर रहा है ना. बट अगर इसका deeper meaning देखें तो what is the deeper meaning? That wind is symbolizing the challenges in our lives, right? Students find more pleasure in tracking down symbols and figurative meanings. In simple words, what appears to be a simple poem of traveling on the forest road develops into the poem discussing of choices in our lives. Similarly, the wind can be compared to difficulties we face in our lives. Strong people face difficulties bravely while weak people are broken or destroyed. Now, road not taken is also a symbolic poem. Okay? Those two roads, what are they symbolizing there? They are symbolizing the choices in our lives. Whatever we choose are going to lead us where we are going to be in the future. And wind is symbolizing the challenges in our lives, right? ये challenges जो हैं जो हमें face करने पड़ते हैं. तो both the poems are symbolic only. Okay? So I hope you understood and I hope this video is going to help you in during your exams. अगर जल्दी से revision करना है तो I think ये video आपको बहुत help करेगा. Okay? So good luck for your exams and thank you.